اسلام آباد میں شہید ہیڈ کانسٹیبل اشرف اور ان کے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جنازہ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں پورے اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس، ضلع انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آفیسرز اور عوام نے شرکت کی۔ شہید کا جثہ خاکی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں تدفین کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ آج صبح راہزنوں کو پکڑنے کی کوشش پر دونوں باپ بیٹا فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے۔ ICCPO ڈاکٹر اکبر ناصر خان کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل کے لواحقین کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ ARG اسلام آباد۔ تھانہ رمنا کی حدود میں 3 ملزمان کی پولیس اہلکار پر فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار اور اس کا بیٹا جاں بحق۔ پولیس اہلکار ڈیوٹی ختم کر کے بیٹے کے ہمراہ گھر جا رہا تھا۔ اہلکار کی شناخت اشرف جبکہ بیٹے کی شناخت ذیشان کے نام سے ہوئی۔ اشرف پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں تعینات تھا۔ 3 ملزمان فائرنگ کرنے کے بعد فرار۔ جاں بحق ہونے والے اہلکار اور بیٹے کی لاشیں پیمز منتقل کر دی گئیں۔ راولپنڈی پولیس کی اہم کارروائی۔ خاندانی تنازع پر شہری کو فائرنگ سے زخمی کر کے بیرون ملک فرار ملزم انٹرپول کے ذریعے گرفتار۔ راولپنڈی پولیس کی ٹیم اشتہاری کو گرفتار کرنے بیرون ملک گئی تھی۔ مجرم اشتہاری سال 2021 کے اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ اشتہاری مجرم کیسر شہزاد نے فائرنگ کر کے پرویز اختر کو زخمی کیا تھا۔ اشتہاری مجرم واردات کے بعد دبئی فرار ہوا۔ راولپنڈی پولیس نے قانونی پروسیس کے بعد انٹرپول کے ذریعے اشتہاری مجرم کو گرفتار کروایا، جو آج راولپنڈی پولیس کی تحویل میں دیا گیا۔ اشتہاری مجرم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اشتہاری مجرمان کو گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ SP صدر محمد نبیل کھوکھر کا ایسا کہنا تھا۔ قانون شکن عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ سانگھڑ سے ابراہیم خلیجی رپورٹ کریں گے۔ سانگھڑ شہر کے مختلف علاقوں سے پاگل کتوں نے 7 افراد کو کاٹ کر زخمی کر دیا، جنہیں سانگھڑ سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں سانگھڑ، منگلی، باعث شک، لٹکو موری اور رہائشی شامل ہیں، جنہیں سول اسپتال ویکسین لائی گئی۔ بلال ارجن سانگھڑ اور گدونواہ میں ثناء اللہ یاز، علی کامران اور دیگر شامل ہیں۔ شہریوں نے میونسپل کمیٹی انتظامیہ سانگھڑ سے مطالبہ کیا کہ اس کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، کتا مار مہم پر عمل کیا جائے۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف حضور بخش خاصقیلی۔ کراچی کے بلدیہ گلشن غازی اقبال ہسپتال کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر بے قابو ہو کر گھر میں گھس گیا، زمین بوس ہو گیا۔ ایک شخص جاں بحق، 2 بچیوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق زخمی ہونے والوں کو چیپا ایمبولینس کے ذریعے سول ہاسپٹل منتقل کیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت عامر ولد توفیق عمر 40 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ زخمیوں میں نصیر حسین ولد توفیق عمر 45 سال، راحیلہ دختر علی عمر 13 سال، مناہل دختر نصیر حسین عمر 2 سال بتائی جا رہی ہے۔ کنری سے فدا حسین رپورٹ کریں گے۔ منشیات فروشوں کی جانب سے پولیس پارٹی پر حملہ، 2 اہلکار شدید زخمی، مقدمہ درج اور منشیات فروش گرفتار۔ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی۔ گزشتہ روز پولیس نے خفیہ اطلاع پر کنری کے نواح بس اسٹانڈ میں منشیات کے اڈے پر چھاپہ مارتے ہوئے کارروائی کی۔ منشیات فروشوں کی جانب سے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا گیا، جس میں پولیس اہلکار احمد نواز رند، امیر حسن شدید زخمی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک منشیات فروش گھمشام بھیل کو گرفتار کر لیا، جبکہ مقدمے میں نامزد دوسرا منشیات فروش کرم چند بھیل بھاگنے میں کامیاب۔ پولیس کی جانب سے کرم چند بھیل کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گوجرانوالہ سے ثناء اللہ صافی رپورٹ کریں گے۔ درجنوں ڈکیتی راہزنی کی وارداتوں میں ملوث صابرہ ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار، ہزاروں روپے نقدی، موٹر سائیکل، اسلحہ برآمد۔ جرائم پیشہ عناصر معاشرے کا ناسور ہیں، SHO عبدالرحمان کا ایسا کہنا تھا۔ سٹی پولیس آفیسر رانا یاس سلیم نے ضلع بھر میں چوروں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اسی احکامات کے پیش نظر DSP فضل عباس اور SHO عبدالرحمان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں ملوث اور مطلوب صابرہ ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ان کے قبضہ سے موٹر سائیکل، 6 لاکھ روپے نقدی، ناجائز اسلحہ، 2 درج پسٹل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں وکیل محمود اور صابرہ شامل۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ اس موقع پر SHO عبدالرحمان کا کہنا تھا کہ ڈکیتوں، چوروں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے پر لوگوں کا مقامی پولیس کو زبردست خراج تحسین۔ CPO نے SHO عبدالرحمان اور ان کی پولیس ٹیم کے جوانوں کو اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاباش دی۔
खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना वाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका नौशहर फिरोज के नायब सदर और साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल उम्मीद अली राजपर को गांव मोहम्मद मारूफ खासकेली दहीजाड़ी यूसी चुनारी में सक्कर खान खासकेली और अब्दुल करीम खासकेली की जानिब से इशाया शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि इस्तकबालिये में आने वाले मौजूद मेहमानों में साबिका ज़िला कौंसिल के मेंबर उम्मीद अली राजपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका नौशहर फिरोज के सदर को मेज़बान सक्कर खान खासकेली और अब्दुल करीम खासकेली की जानिब से पटका और लुंगी शॉल पहनाई गई, जबकि दरिया खान मरी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इब्राहिम बरोही, मुमताज़ अली कबूल, दरिया खान मरी काउंसलर्स अली हसन मलिक, अब्दुल जब्बार मलिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरिया खान मरी सिटी के नायब सदर अमजद अली खासकेली, डॉक्टर अजीजुल्लाह चांडियो, दीन मोहम्मद कबूल को सिंधी टोपियां अजरकें पहनाई गईं। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए उम्मीद अली राजपर ने कहा कि इंशाल्लाह 9 फरवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है और सिंध के अवाम ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों के रोजगार की ज़ामिन है और इंशाअल्लाह 2024 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साल होगा। तकरीब में प्रेस क्लब दरिया खान मरी रजिस्टर्ड के नायब सदर राना रियाजुल हसन, जनरल सेक्रेटरी राव वाजिद अली, प्रेस सेक्रेटरी राना आरिफ और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना वाहिद अली को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। इस जमात के लीडर्स ने अवाम के लिए अपनी अजीम जानों का नजराना दिया। अवाम इन्हें फरामोश नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियाँ राफतुर रहमान रहमानी ने ख्वाजा हसन मलिक मुख्तार, मियाँ बलीगुर रहमान सैयद, ख्वाजा सुहेल अब्बास, मलिक यूनुस हमशीरा, एजाज लाची एडवोकेट और दीगर के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मुल्क में जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, महंगाई कंट्रोल में रही, बेरोजगारी कम हुई और सबसे बढ़कर मुल्क की मईशत मजबूत हुई, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। तारीख गवाह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी लाखों घरानों में बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत माली इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। आवाम पीपल्स पार्टी को वोट देकर अपना खुशहाल मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर आवाम का एतमाद है। इस वक्त मुल्क के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने मसाइल का वाहिद हल समझते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे का किरदार और सलाहियत भी बेनज़ीर है। इंशाअल्लाह इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च प्रेस क्लब एंड मीडिया ग्रुप के साल 2024 के लिए इंतखाबात मुकम्मल हो गए। तमाम ओहदेदारान का इत्तफाक राय से चुनाव अमल में आया। प्रेस क्लब के अरकान का इंतखाबी नताइज मकामी होटल में मुनक़िद हुआ। इंतखाबी नताइज के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी इरशाद अहमद शाह बिला मुकाबला सदर, ख्वाजा इब्रार हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि इत्तफाक राय से मुंतखब हुए दीगर ओहदेदारों में मोहम्मद सलीम शहजाद उच्च प्रेस क्लब के चेयरमैन, जुल्फ़िकार अली मकूल वाइस चेयरमैन, जाहिद हुसैन खान कलहोड़ा और अतर इकबाल मुगल सीनियर नायब सदूर, मोहम्मद इम्तियाज बडानी, मोहम्मद अकरम खान और शहजाद खान शकरानी नायब सदूर, ख्वाजा इब्रार हुसैन जनरल सेक्रेटरी, ख्वाजा इब्रार रजा फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद साजिद अंजुम सेक्रेटरी इत्तलात, मोहम्मद अरशद खान ज्वाइंट सेक्रेटरी और सैयद मोहसिन शमसी चेयरमैन मजलिस आमला के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। जबकि अरकान मजलिस आमला में मोहम्मद इलियास राजा, डॉक्टर इमरान सियाल, ख्वाजा इज़हार हुसैन, राना इम्तियाज अली, बिलाल अहमद शाह, मोहम्मद हसीब, अतर मुगल, मोहम्मद सदीक फारूकी, मोहम्मद आमिर खान, ख्वाजा फ़ारूक अली, ख्वाजा शेर अली, सैयद एहसन बुखारी, मोहम्मद तारिक शाह, मलिक मोहम्मद नदीम मकोल, हाफिज मोहम्मद साद और हाजी मोहम्मद अल्ताफ़ शामिल हैं। रूरल मीडिया नेटवर्क का पाकिस्तान के सदर एहसान अहमद सहर ने मुमताज़ माहिरीन तालीम MRNP के तहसील कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सुलेमान फारूकी, मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी सैयद तनवीरुल हसन बुखारी और नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद सज्जाद घुलू के हमरा प्रेस क्लब एंड मीडिया ग्रुप के इंतखाबी अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद दी और इस तवक्को का इज़हार किया कि उच्च प्रेस क्लब एंड मीडिया ग्रुप के नौमुंतखब ओहदेदार अरकान नए साल 2024 में सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नौमुंतखब ओहदेदारान के मुत्तफ़िक़ा करारदाद दरख्वास्त पर एहसान अहमद सहर ने उच्च प्रेस क्लब के पैट्रन इन चीफ के तौर पर जिम्मेदारी निभाने की हामी भरी। मुंतखब होने के बाद उच्च प्रेस क्लब की नई इंतजामिया ने अपने पहले इजलास में अहले कलम के इज्तमाई मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन काविशें करने का आज़म किया। एहसान अहमद सर की तजवीज़ पर मज़लूम लोगों की आवाज़ अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने और सियासी और सरकारी हुकाम को अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए उच्च प्रेस क्लब एंड मीडिया ग्रुप फोरम के क़याम का फ़ैसला किया गया।
थाना कोतवाली के गुंजानाबाद इलाके शहीद रोड, यूसुफ शाह रोड, चर्च रोड और कचहरी रोड पर एक ही रात चोरी की नॉनस्टॉप 4 वारदातों में नामालूम चोर करोड़ों रुपए का माल ले उड़े। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात नामालूम चोर थाना कोतवाली के इलाके शहीद रोड पर मोबाइल शॉप से, यूसुफ शाह रोड पर टेलीमार्ट मोबाइल शॉप से, चर्च रोड पर 1 टन मोबाइल शॉप से और कचहरी रोड पर टायरों की शॉप से नामालूम चोर ताले तोड़कर करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन, नकदी, दीगर कीमती सामान ले उड़े। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस क्राइम सीन यूनिट के एहलकार चापाकुआ पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट हासिल कर लिए और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुसलसल चोरी की वारदातों से ताजिर बरादरी परेशान दिखाई देती है। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। सांगड़ में महमूद हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेस क्लब के सामने सर्दी से बचाव के लिए गरीब आवाम के लिए गर्म कपड़ों और जैकेट्स का फ्री स्टॉल लगाया गया, जिसमें गरीब आवाम को अपनी पसंद के मुताबिक जैकेट्स तकसीम की। इस मौके पर समाजी वर्कर जमील मसीह का कहना था कि मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा और महंगाई के बायस गरीब आवाम गर्म कपड़े की खरीदारी करने से कासिर हैं। हमारी समाजी तंजीम महमूद हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेस क्लब सांगड़ के सामने आवाम के लिए गर्म कपड़ों का फ्री स्टॉल लगाया गया, जिसमें गरीब आवाम को अपनी पसंद के मुताबिक गर्म जैकेट्स तकसीम की गई। उनका मजीद कहना था कि इस ठठरती रातों में गरीब लोग सर्दी से परेशान हैं। इनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए गर्म जैकेट की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी तंजीम और भी फलाही काम कर रही है, जिसमें भूखों का खाना खिलाना और पानी के नलके लगाना शामिल है। दूसरी जानिब गरीब आवाम का कहना था कि जमील मसीह की जानिब से फ्री स्टॉल लगाने पर हम सलाम पेश करते हैं। ये जैकेट अगर बाजार से खरीदे तो इसकी कीमत 1000 से कम नहीं और यह हमें फ्री में मिल गई है। इससे हम सर्दी से बच सकते हैं, जबकि तंजीम की जानिब से फ्री गर्म कपड़ों का यह सिलसिला मजीद जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया काउंसिल जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी तारिक हुसैन, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ के दादा अबू और हाजी तारिक फारूक, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ के तायाबू की ताज़ियत और फातेखानी के लिए सीनियर सहाफ़ियों में ज़िला सदर जर्नलिस्ट पार यूनियन इंटरनेशनल और नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन कॉलम निगार सैयद मखदूम हुसैन नकवी और सैयद नसीम अस्करी, नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन में मीडिया सेंटर नस्त बाबा फरीद ट्रोल्स पाकपतन में मरहूम और मगफूर के लिए मगफरत की दुआ की। इस दौरान सीनियर सहाफ़ी ज़िला सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल इफ्तिखार अहमद भट्टी, नुमाइंदा कैपिटल न्यूज़ भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ियों ने हाजी मोहम्मद तारिक को इनके दादा की विसाल पर इजहार अफसोस किया। साहिवाल से यूनुस शहबाजी रिपोर्ट करेंगे। सरबराह मुस्लिम लीग ज़या इजाजुल हक की साहिवाल प्रेस क्लब आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मौजूद सूरत हाल में इलेक्शन हर सूरत होंगे। हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ अलायंस कर रहे हैं। हम अपने मंशूर के अंदर पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल भी बताएंगे और हम आज भी इस्टेब्लिशमेंट और सब पार्टियों में इख्तिलाफ ख़त्म करना चाहते हैं। मजीद उनका कहना था, आइए आपको वो सुनवाते हैं। कौम के जो मसाइल है, मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन पोस्टपोन करें, मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ और अगली बात भी बताऊँगा कि कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कम से कम जो मुल्क को दरपेश मसाइल है, किसी के पास उसका हल नहीं। यानी वहाँ से शुरू करते हैं, मुझे क्यों निकाला से, और हाईजैकिंग पे आगे ख़त्म करते हैं बात को। ये नहीं बताते कि यार इक़्तिसादी मामलात को किस तरह देखेंगे, मुल्क की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, इस जो अफरात ज़र है इसको कम कैसे करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे। कोई तो इकनॉमिक विजन होता है। आप चैम्बर्स के अंदर भी जा रहे हैं, वहाँ जाकर भी आपके पास कुछ नहीं है उनको बताने के लिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ये तो SIFC की मैं कहूँगा, और थोड़ी सी फ़ौज को भी समझ आई और ये उनकी मेहरबानी थी कि डॉलर कंट्रोल हो, थोड़ा सा डॉलर कंट्रोल हुआ और उस डॉलर के कंट्रोल में थोड़ी सी स्मगलिंग बंद हुई है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो माशाल्लाह सारे हदें अबूर कर गई है। लेकिन उसकी वजह ये है कि उसकी वजूहात भी हैं कि जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है, सूद की जो शरह है वो इतनी ज़्यादा होगी कि 25% होगी, और लीज़ करते हैं जब आप मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ 38% दे रहे हैं, तो लोगों के पास इतनी सकत ही नहीं है कि वो 25% पे सूद लेकर, मतलब कर्ज़ा लेकर किसी अपने कारोबार में लगाएं। कौन सा कारोबार है सिवाय
स्मगलिंग के और हीरोइन के, जिसमें 25% ज़्यादा आपको मुनाफा मिलता हो। हर बंदे को पता है यहाँ जो बिज़नेस कर रहा है 10%, 15%, 20% कमा लोगे आप टैक्स देने के बाद, सैलरीज निकालने के बाद। तो इतने जो शरह सूद की इतनी ऊपर है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और यही लोग जो आज कह रहे हैं जनाब कि हम इसका कोई हल निकालेंगे, 16 महीने इन्होंने जो हुकूमत के साथ किया वो अजीब व गरीब है। अभी आपने देखा कि आपस में नूरा कुश्ती हो रही है और आने वाले इलेक्शन के बाद PDM 2 बनने की भी तैयारी हो रही है। तो मैंने ये सोचा था और मैंने कुछ राब्ते किए हैं दोस्तों के साथ, कुछ हमारे साथ MNA हैं, कुछ MP हैं, उनसे मैंने राब्ते किए हैं। तो एक साफ़ और शफाफ, जब तक हम कोई ग्रुप बनाकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब कोई हम इस कौम को कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाएंगे, जब तक हम कौम को नहीं बताएंगे कि यार हमारे पास भी कोई हल है, हम वो हल लेकर आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह इलेक्शन लड़ के तो ज़्यादा ख़राबियाँ आएंगी। जिस तरह के मतलब बग़ैर मकसद के आप कहें जी इलेक्शन लड़ना है क्योंकि पत्थर पे लकीर है इसलिए इस लकीर से हम नहीं हट सकते। लेकिन उससे पहले आज भी मैं दोबारा ये कहूँगा कि इलेक्शन से पहले सारी जमातों को इकट्ठे बैठकर एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान करना चाहिए। जब तक वो चार्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, अपनी अपनी हदें मुकर्रर नहीं करेंगे, कहाँ से तजावज़ नहीं करनी, अपनी अपनी गलतियों का इतराफ़ नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आप जब मुश्किल में हो तो मुल्क से बाहर चले जाएं, जब NRO हो जाए तो आप वापस आ जाएं और आप कहें जी अब मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। किसी शख्स से पूछें बाहर निकल के कि आने वाले इलेक्शंस के बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, तो एक ही लफ्ज़ मुँह से निकलता। मैं वो कहना नहीं चाहता क्योंकि कुछ नीचे तदबीरें करने वाले होते हैं, कुछ ऊपर तदबीर करने वाले होते हैं। तदबीरें वही होती हैं जो ऊपर से होती हैं। इनकी ख्वाहिशात पे अगर मामला चलने लग जाते तो किसी गरीब को आज रोटी नहीं मिलनी थी, सारा माल इन्होंने लूट के खा लेना था। तो इसलिए इकट्ठे बैठना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना चाहिए। इकट्ठे बैठकर जो है वो तय करें कि पाकिस्तान की क्या मुश्किलात हैं, इसका हल कैसे निकालना है। जैसे SIFC बनाई है, अब SIFC बनाने का क्या मकसद है? लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है, फ़ौज का क्या काम है SIFC में बैठना। अगर SIFC में ना बनी होती और उस पर कंट्रोल ना करते तो आज यही जो आज वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं, ये कह रहे थे कि जनाब डॉलर जो है 500 रुपये पे चला गया। जैसे लीरा चला गया था तो फिर आपको एक बड़ा लिफाफा लेकर जाना पड़ता था डबल रोटी ख़रीदने के लिए। पैसों की वक़्त ही कोई नहीं रहती। तो इसलिए अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह, अभी तो आज मैं नहीं कहता कि हम एक नया अलायंस तश्कील दे रहे हैं। उसमें कुछ हमारे अच्छे सियासतदान हैं और कुछ हम साथ अपनी मजहबी जमातें साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इसका ऐलान इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हम अगले 3-4 दिन के अंदर इसका ऐलान करेंगे और फिर एक नई साफ़ सुथरी सियासत का अंदिया करते हुए हम, यही हमारी डिमांड है कि इलेक्शन से पहले बैठकर एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो। ये नहीं है कि बंदर बांट हो। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन को इमदादी रकम की तकसीम का सिलसिला जारी। सैयद ऑन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर निगरानी डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मलिक सफ्तर अवान, असिस्टेंट डायरेक्टर समीला भट्टी, नातिक शाह और HPL कनेक्ट के अफसरान से CM कामरान, यूसुफ ताहिर मजीद, जोनल मैनेजर दानिश रफ़ी रवान, BDO कैसर शरीफ शाहिद की निगरानी में मुस्तहिक ख़वातीन को इमदादी रकम की तकसीम जारी। ख़वातीन के रश को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इलाकों में HPL कनेक्ट के रिटेलर की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, जहां पर पीने का ठंडा पानी और बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई। मुस्तहिक ख़वातीन आसानी से रकम मिलने पर खुशी से सरशार हैं। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान और HPL के अफसरान का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सरगोधा से शहजाद अकबर रिपोर्ट करेंगे। सेंट्रल कम्युनिटी पेंटकोस्टल चर्च जौहराबाद में सीनियर पास्टर बशीर अनवर साहब की तरफ से मुकामी कलीसिया को क्रिसमस लंच पेश किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी DSP सदर जुल्फ़िकार असलम थे। DSP सदर जुल्फ़िकार असलम का कहना था, मसीही बरादरी हमारे माशरे का हिस्सा है, उनकी रसूमात त्यौहार जानो माल को महफूज बनाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। क्रिसमस त्यौहार निहायत अहम है,
صدر سرکل کے تمام چرچز کی تقریبات پر امن طریقے سے انجام پذیر ہوں گے اور ان کے تہوار میں شریک ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام اقلیت سے محب وطن ہیں، تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مزید کہا، سینٹرل کمیونٹی پنتکاسٹل چرچ شوہر آباد میں کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب کی شرکت سے خطاب میں سینٹرل کمیونٹی پنتکا چرچ کی چیئرمین سینئر پاسٹر بشیر انور اپنے مسیحی قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، اس لیے ان کی چرچ منسٹری کے کام بہت اچھے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس منسٹری کے کام کو اور بڑھائے۔ ڈی ایس پی صدر نے ہوپ صلاح سینٹر کا کورس مکمل کرنے والی بچیوں کو اسناد دیا اور اس طرح مقامی کلیسیا کی بیوگان میں پادری بشیر انور کی طرف سے نقد رقوم اور دیگر تحائف تقسیم کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شہج آباد سے۔ اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن میں کانسٹیبلان کے پروموشن لسٹ اے اور B1 کے امتحانات کا انعقاد۔ پروموشن لسٹ اے اور B1 کا امتحان میرٹ پر کیا گیا۔ ایس پی ہما نصیب کسی کی حق تلفی نہیں کی گئی۔ اہل کانسٹیبلان کو ترقی دی گئی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم اور ڈی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اطہر وحید کی ہدایت پر ملتان ریجن میں پروموشن لسٹ اے اور B1 کے امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ ہما نصیب سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن، چیئرمین امتحانی بورڈ، ڈی ایس پی رانا ظہیر بابر ضلع ملتان، ڈی ایس پی زبیر بنگش ضلع مظفر گڑھ اور ڈی ایس پی محمد طاہر بٹو ضلع پاکپتن ممبر بورڈ موجود تھے۔ اس موقع پر ہما نصیب سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن نے کہا کہ بہترین ڈرل اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل کانسٹیبلان کا لسٹ اے میں اندراج کرنے کے بعد B1 امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ٹی پیٹرولنگ نے کہا کہ پروموشن لسٹ اے اور B1 کا امتحان انتہائی شفاف میرٹ کی بنیاد پر ہوا۔ تحریری امتحان پاس کرنے والے ملازمین کو انٹرویو اور پریڈ ٹیسٹ کے لیے بلوایا گیا اور اہل معیار پر پورا اترنے والے کانسٹیبلان کو ہی پروموشن دی گئی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کی۔ عمرکوٹ کے مقام پر 16 دسمبر 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران دشمن کو ناکو چنے چبوانے والے پاک افواج کے شہداء اور APS کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حیدر لغاری کی اس رپورٹ میں۔ عمرکوٹ کے تاریخی قلعہ گراؤنڈ اور یادگار شہداء پر 1971 کے پاک بھارت جنگ کے دوران عمرکوٹ سے 9 کلومیٹر دور ہنگورنو کے مقام پر دشمن کے عزائم خاک میں ملانے والے پاک فوج کے شہداء اور 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے معصوم شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر شبان شیخ، اساتذہ کرام، مختلف اسکولوں کے طالب علموں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں طالب علموں ملی نغمے ٹابلو پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ جو قوم اپنے شہداء کو بھول جاتی ہے وہ قومیں تاریخ میں کبھی زندہ نہیں رہتی۔ شہداء کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایونٹ دیکھ رہے ہیں، ہم شہداء جو ہمارے مارٹرز ہیں ان کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ اچھا سا ایونٹ بنایا ہے، جس میں ہمارے جو کافی گورنمنٹ اسکولز کے جو بچے ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ناٹ اونلی آئے پر ہمارے جو سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وہ بہت خوش ہوئے، اور ہم نہ صرف آج پر ہمیشہ جب بھی یہ ایونٹ آئے گا ہم اپنے جو شہداء ہیں، جو پاک فوج کے جوان ہیں، ان کو ایڈمائر کرنے کے لیے، ان کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے، ایونٹ مناتے رہیں گے، تاکہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ابھی والی اور ابھی جو آرمی میں سرو کر رہے ہیں ان کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں، ان کو یہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں۔ ہم پورے پاکستان ملک کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اور پورے یونائٹڈ نیشن کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جو جوان ہیں، ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ کسی ملک سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم کسی کی سنیں گے نہیں۔ ہم اپنے پاکستان کی ہمیشہ پروٹیکٹ کریں گے، ہم ڈیفینس کریں گے، اور ہم نہ صرف ہمارے آرمی پر ہمارے جو لوکل لوگ ہیں وہ خود ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی جان و نثار دیتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ خبر شامل کریں گے گجرانوالہ سے ثناء اللہ صافی کی رپورٹ کے مطابق علاقہ تھانہ باغبان پورہ میں نجی ہسپتال سے نومولود بچے کے اغوا کا ڈراپ سین۔ تھانہ باغبان پورہ میں وقوع کی بابت فوری مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز۔ سٹی پولیس آفیسر محمد یاس سلیم نے ایس پی سٹی ڈویژن غیور احمد کو بچے کی بازیابی کا ٹاسک دیا۔ مقامی پولیس اور CIA کے گوجرانوالہ نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مغوی کو بازیاب کروا لیا۔
इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ऑपरेशन करने वाली लेडी डॉक्टर के यहाँ डिसेबल बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। लेडी डॉक्टर ने दीगर स्टाफ मेंबरान के साथ मिलकर साजिश रचाई और नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने पेशावराना महारत की बदौलत तमाम साजिशों को बेनकाब करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान में लेडी डॉक्टर सद्दीका, शकीला और सैफुल्लाह शामिल। मुलविस मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। CPO खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह खान साफी से। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ख्याली अड्डा पर कारकुनान से खिताब। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन शेड्यूल देने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ पूरी कौम खड़ी। अब इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि 2024 का इलेक्शन शफाफ करवा के तारीख में अपना नाम दर्ज करें। पाकिस्तान के अवाम पुरजोश होंगे तो इस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला अमन है। उनका कहना था कि रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। मुल्क को ऐसा हुक्मरान चाहिए जो मुल्क में अमन लेकर आए। इंशाल्लाह जमात इस्लामी आने से मुल्क में अमन आएगा। मुल्क इस वक्त तरक्की करेगा जब मुल्क से सूदी निज़ाम खत्म होगा। नवाज और ज़रदारी मुल्क में अपने खानदानों की हुकूमत चाहते हैं। लोग चांद पर जा रहे हैं और हम भी बादशाही निज़ाम के पीछे खड़े हैं। कौम को इज्जत के साथ जीना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गुलाम हो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट दें। अगर आप गुलामी से आज़ादी चाहते हैं तो जमात इस्लामी को वोट दें। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खामोश है। गुजरावाला बताओ, आप लंदन वालों के साथ हैं या मोहम्मद के साथ हैं? 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाकर इस मुल्क से सूदी निजाम का आपको खात्मा करना होगा। मंडी बहाउद्दीन 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद। इंग्लैंड के ब्रांड समेत 50 से ज़ायद ब्रांड्स की शिरकत। आलमी मेयार का फर्नीचर मुतारिफ करवाया गया। जिला भर से फैमिलीज ने खसूसी दिलचस्पी ली। जहेज पैकेज के लिए खसूसी स्टॉल भी लगाए गए। मजीद जान लेते हैं मंडी बहाउद्दीन से मिर्जा बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, मैं इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के एक निजी मैरिज हॉल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे फर्नीचर नुमाइश के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ आपको बताता चलो कि 50 से ज़्यादा ब्रांड के जो स्टॉल हैं वो लगे हुए हैं। मज़ीद यहाँ पे मैरिज हॉल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ब्रांड्स के जो मालिकान हैं उनसे भी बात करते हैं और जो यहाँ पे खरीदार हैं उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। यहाँ जो 3 रोज़ा नुमाइशी स्टॉल लगी हुई हैं, यहाँ से चीज़ें खरीदने के उनसे कितना फ़ायदा हुआ है। हमारे साथ ही यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं ना यहाँ पर पहले नहीं आया था। मैं अपने ना मम्मा पापा के साथ यहाँ पर आया हूँ। जो मैंने पहले चीज़ें नहीं ना देखी थी ये वो हैं, और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी बेटा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आप आए तो? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक नई चीज़ है। यहाँ ऐसे कोई ऐसे इवेंट एग्जीबिशन नहीं होता है और यहाँ की चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग है और यहाँ वैसे मेयार है जैसे दिखाया जा रहा है, जैसे शो किया जा रहा है। और हमने यहाँ से बहुत चीज़ें भी ली हैं और सारी चीज़ें इनका ब्रांड है, उनके कॉस्टली भी हैं। क्या मंडी बहाउद्दीन में ऐसी नुमाइश होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। एक बंदे का माइंड व्यू बनता है, माइंड सेट बनता है, न्यू चीज़ें आती हैं तो उसके लिए होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सदफ है और मैं इस वक्त खड़ी हूँ ट्रेडिशन आर्ट के ब्रांड पे। मैं इस ट्रेडिशन आर्ट पे वर्क करती हूँ। मैं इनकी परमानेंट एम्प्लॉय हूँ और माशाल्लाह मुझे मंडी बहाउद्दीन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम हम मंडी बहाउद्दीन में खड़े हैं और यहाँ पे कस्टमर्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि हमारे एक ही रूफ़ के नीचे, एक ही छत के नीचे हम आपको 50 ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो डिफरेंट टाइप के वो आर्टिकल्स लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। हर किस्म का कस्टमर आ रहा है, कुछ सॉलिड में जा रहा है, कुछ लोग जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हर तरह का कस्टमर जो है उसको उसके अकॉर्डिंग डील किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बल्कि आपको इनवाइट करूंगी कि आप लोग भी हमारे इस ब्रांड पे तशरीफ़ लेकर आएँ। हम आपको भी अच्छा सा एक पैकेज देंगे ताकि आप भी इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, कोई चीज़ यहाँ पे आपको चीज़ें देखी, कोई चीज़ पसंद भी आई है? यहाँ पे कोई ख़रीदारी की है आपने यहाँ पर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जो है ना जी इनका जो है ना पाक लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो वाला को शुक्रिया अदा करता हूँ जी। अलहमदिल्ला इन्होंने हमारे मंडी बहाउद्दीन को चूज़ किया जी। यहाँ पे 50 के करीब स्टॉल है और फर्नीचर की जो मुकम्मल वैरायटी है, जो आपकी होप है, एक ख्वाहिश है एक बड़े घर में जो आप रहना पसंद करते हैं
वो आपको यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी और प्राइस भी जो है ना रीज़नेबल है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं फर्दन इन लोगों से मिला हूँ जी। मैंने पूछा है, मुख्तलिफ सिटीज़ से ही आए हुए हैं, तो उनसे मैंने पूछा जी आपकी परचेजिंग कैसी है, तो लोगों का कैसा बिहेव है, तो वो बड़े रिलैक्स हैं। परचेजिंग के लिहाज से भी बता रहे हैं कि जी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं अपने मंडी बहाउद्दीन को कहता हूँ जी, सिटीज़न को कहता हूँ, कल लास्ट डे है, आप आएँ, विज़िट करें। मुझे उम्मीद है अगर आप देखें, अगर कोई चीज़ आप परचेज़ करने जाते हैं, हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, ये लोग खुद चल के आपके पास आए हैं, तमाम आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें लेके आए हैं। और जो सीलम वाली की एक प्रोडक्ट है जी, वुड की जो है मुकम्मल वैरायटी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो मेरा ख्याल है आप आएंगे, विज़िट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा।